Assalamu alaikum viewers, I'm Amr Shahzad Ranja and today we will cover the remaining part of the demerits of presidential form of government. Let's start with them. The next demerit of presidential form of government is that the change of leadership in time of crisis is not possible in this form of government. A leader may be good at administering the affairs of the state internally and under the normal circumstances, but he may not be as good in the time of international crisis or when there is a crisis at national level. If the need is felt that this leadership should be changed to tackle the crisis situation at national or international level, there is no possibility in this form of government to change that leadership like that is possible in parliamentary form of government, because the president is elected for a specific period of time and he cannot be removed before that period until and unless new elections are held, and the president cannot be replaced with any other person except to hold a new election. On the other hand, the change of this leadership is possible even without conducting the general election. The prime minister or the leader can be replaced with the voting of the parliament only, and there is no need to hold the general elections. सदारती तर्ज़ हुकूमत की एक और ख़ामी ये है कि इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर कोई क्राइसिस पेश आ जाए तो उसके पेश नज़र अगर ज़रूरत पेश हो कि लीडरशिप को चेंज किया जाए, तो इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर लीडरशिप की चेंज या लीडरशिप को तब्दील करने का जो मामला है वो पॉसिबल नहीं है। अगर लीडरशिप चेंज करनी है तो पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, जो कि वैसे ही किसी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर पॉसिबल नहीं होता। यानी एक कंट्री का हेड मुल्क को अंदरूनी हालात पे चलाने के काबिल तो होता है, और जब नॉर्मल हालात होते हैं तो वो इस काबिल होता है कि वो मुल्क के मामलात को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। लेकिन जब कोई क्राइसिस की सिचुएशन कौमी सतह पे या बैनुल-अक़वामी सतह पे पेश आ जाती है तो हर शख्स की ये काबिलियत नहीं होती कि वो उन हालात का सही तरीके से मुकाबला कर सके या उनको सही तरीके से मामलात को देख सके। तो अगर ये ज़रूरत पेश आ जाए कि नए हालात के मुताबिक नई लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि इन हालात के मुताबिक फ़ैसले कर सके, तो इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लीडरशिप की तब्दीली जो है वो बग़ैर इलेक्शन के पॉसिबल नहीं है, और इलेक्शन का इनकाद क्राइसिस की सिचुएशन में एक वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत को देखें तो वहाँ पे किसी क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर लीडरशिप को तब्दील करने की एक ऑप्शन मौजूद होती है, और वो पार्लियामेंट के वोट से होती है। जनरल इलेक्शन की ज़रूरत पेश नहीं आती, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास मौजूद है कि जंग अज़ीम दोम के दौरान यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिस्टर चर्चिल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया ताकि वो इस जंगी हालात के अंदर मुल्क की जो है वो क़यादत अच्छे तरीके से कर सकें। तो इस तरह की क़यादत की तब्दीली जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मुमकिन नहीं होती। Another demerit of presidential form of government is that the legislation is not done according to the needs or requirements of the executive. The executive has to make new policies and new plans to govern the state or the government, to regulate the affairs of the government or state in a better way. And in presidential form of government, executive and legislature are two separate departments or two separate organs. So many times it is observed that the legislation is not cooperating with the executive or the president to make laws according to their requirement or their wishes. And this gap is more widened when the president is from one party and another party holds the majority in the legislature. तो सदारती तर्ज़ हुकूमत के अंदर एक और ख़ामी ये है कि इसके अंदर मुकन्ना इंतज़ामिया की ख्वाहिशात या इंतज़ामिया की ज़रूरत के मुताबिक कवानीन नहीं बनाती। इंतज़ामिया को हालात के मुताबिक नई नई पॉलिसियाँ और नई नई कवानीन की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर इंतज़ामिया और मुकन्ना दोनों अलग-अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा देखने में मिलता है कि मुकन्ना इंतज़ामिया के साथ इस मामले के अंदर जो है वो तावन नहीं करती, और इंतज़ामिया को जो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन चाहिए होती है या जो जिन कवानीन की ज़रूरत होती है तो वो लेजिस्लेशन उनको पास करके नहीं देती।
हम अक्सर औकात देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कोई पॉलिसी अनाउंस कर देता है और इस पॉलिसी या प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए या लीगल सैंक्शन देने के लिए मुकन्ना सदर की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल नहीं करती, और ये गैप मज़ीद ज़्यादा हो जाता है जबकि सदर किसी एक पार्टी से हो और मुकन्ना के अंदर किसी दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी हो। Another disadvantage of this form of government is the favoritism, nepotism or corruption in the appointment of the ministers or the secretaries. As the president is free to appoint his ministers or secretaries without any restriction, he is free to appoint according to his own will and wish in this regard. So in many cases, the president appoints his ministers or secretary on the basis of his personal affiliations or likings and not on the political contribution or political role of that person. सदारती तर्ज़ हुकूमत की एक और खामी ये है कि इसके अंदर मिनिस्टर या सेक्रेटरी की तकर्रुर के हवाले से कई दफ़ा अकरबा परवरी और करप्शन के मामलात का मुज़ाहिरा देखने को मिलता है, क्योंकि इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर सदर मुकम्मल तौर पे आज़ाद होता है कि वो किसी भी शख्स को अपना सेक्रेटरी या मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। तो वो अपने सेक्रेटरी या मिनिस्टर को अपॉइंट करते हुए अपने ज़ाती ताल्लुकात, अपना ज़ाती लगाव और अपनी ज़ाती पसंद को मद्देनज़र रखता है और अशख़ास की सियासी हैसियत और सियासी अहमियत को नज़रअंदाज भी कर देता है। तो इस अमल के दौरान सदर अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए भी तकर्रुरियाँ करता है। तो ये इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की एक खामी समझी जाती है। The next disadvantage of presidential form of government is the rigidity in the policies. As the legislature and executive are two separate organs and the executive cannot be pressurized by the legislature to change its policies according to the needs and requirement of the public. Once executive announces its policies or its plan, it cannot be pressurized to change it or reshape it. इस तर्ज़ हुकूमत की एक और ख़ामी ये है कि इसके अंदर पॉलिसियों के अंदर लचक नहीं पाई जाती। इंतज़ामिया कोई भी पॉलिसी या प्लान जब अनाउंस कर देती है तो मुकन्ना उसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकती, उस पर दबाव नहीं डाल सकती। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि कोई भी पॉलिसी अगर बना दी गई है या अनाउंस कर दी गई है, अगर अवाम की राय उसके ख़िलाफ़ है या अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उसको तब्दील भी किया जा सकता है, और इस तब्दीली के लिए प्रेशराइज़ करने का एक टूल लेजिस्लेचर होता है जो कि अवामी राय के इजहार का एक ज़रिया होता है। तो इस तरह सदारती तर्ज़ हुकूमत के अंदर हुकूमत की पॉलिसियाँ गैर लचकदार होती हैं तो उनको आसानी से तब्दील नहीं करवाया जा सकता। जबकि हम पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के अंदर अगर देखें तो वहाँ पे हुकूमत या इंतज़ामिया अपनी पॉलिसियों को पार्लियामेंट के दबाव की वजह से तब्दील भी कर लेती है। लास्टली देयर इज़ अ रिजिडिटी इन टर्म्स ऑफ tenure of the office of president. As we know that in this form of government, president is elected for a specific period of time, and if meanwhile the public opinion goes against him and he becomes unpopular leader, there is no option to remove him, and the population of the country is bound to tolerate this unpopular government till the expiry of its टर्म। सदारती तर्ज़ हुकूमत की एक और ख़ामी ये है कि इसमें सदर का ओहदा भी अपनी मुद्दत के लिहाज से गैर लचकदार होता है, यानी सदर को एक ख़ास मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है और इस टेन्योर के दौरान अगर अवामी राय सदर के ख़िलाफ़ हो भी जाती है तो सदर को उसके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता और अवाम को उस सदर को अब उस मुकर्रर ओहदे तक बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये जमहूरी तर्ज़ हुकूमत होने के बावजूद भी सदारती तर्ज़ हुकूमत का एक बहुत बड़ा नक्स है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।